Hello and welcome everyone to another episode of The Perspective. And today we have here with us Dr. Sween Sani. Welcome, ma'am. Thank you. Welcome. So let me introduce ma'am, Dr. Sween Sani, to all of you. Dr. Sween Sani is a distinguished clinical psychologist, parenting coach, life skill trainer, and renowned career strategist and founder of the Mind Mentors, serving masses across the globe since 1991. Remarkable. Dr. Sween is 3 times Educational Excellence Award winner in consecutive years by Dr. Kiran Bedi, Mr. Chetan Bhagat, and Dr. Shashi Tharoor. She also authored and published 2 self-help motivational books, Aadharshila Nai Jeevan Ki and Aao Chule Asma, which transformed millions of young lives. And now she's soon coming up with her next book on mental health. She's going to be awarded as the Best Mentor Award on 27th of September by Indian School Awards of Excellence. Amazing. So good to Thank have you. you here, ma'am. Can you tell us more about yourself? I'm really glad to join this conversation today, Filza, because it's always my pleasure to come on your platform and share this stage with you. Uh, I would start with few lines of my upcoming book. Yes, ma'am. जब लव कहने को आतुर हो और सुनने वाला कोई ना हो, जब सोच के धागे उलझे हों और बुनने वाला कोई ना हो, उम्मीद के शीशे बिखरे हों, चुनने वाला कोई ना हो, तो जिंदगी से हारना नहीं, खुद को कम समझ के नकारना नहीं. Call the mind mentors. We change your approach because we coach your सोच. सो गुड. बहुत खूब, बहुत अमेजिंग. Each मुझे. of us, यस yeah, मैम, please. यस मैम, प्लीज कंप्लीट. Each of us carries unspoken stories inside, no? Some यस. empowering, some painful. So that's how everybody expects कि whenever you are serving as a mental health practitioner, there should be some tragedy behind that. There should be some traumatic experience behind that. But what I think, my journey has been completely different. I have been a very blessed child from very abundant family who and siblings, elder siblings who gave me all the love, all the pampering, all the good education and good purpose to lead the life. Even my partner, he supported me in my dreams. So when you are completely overfilled, your emotional cup is fulfilled, जब आप सक्षम होते हो, तो एकदम. मेरा मानना है, हमें ये बताया गया है कि जब आपके पास कुछ भी है तो अपनी जरूरत से ज्यादा आप उसे दूसरों को दीजिए. So I tried to overcome negativity in other people with the positivity I used to carry in my world. I tried to take away all the pain around people because I used to have so much happiness, love, empathy, and non-judgmental approach inside me. दिस सो अमेजिंग. लाइक आपका कम फ्रॉम इज फ्रॉम लव, which is much needed. It's not from trauma or fear. Huh? It is coming from love, which is definitely going to be in abundance for all of us. And I can see that. Being your student, I can see that. And I am experiencing this. My next question to you is, जहां पर सारे लोग डर रहे हैं, जहां पर सारे लोग पुश बैक कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने को, इतना बड़ा टैबू बनाया गया है इसको सोसाइटी में. इवन गर्ल्स, वो अपने आप को सोचती हैं कि अगर मेरे साथ कोई टैग अटैच हो जाएगा तो मेरी शादी में प्रॉब्लम होगी, मेरे पार्टनर्स को प्रॉब्लम होगी. दे आर अनेबल टू स्पीक अबाउट देम. वहां पर मैंने आपको देखा फियरलेसली. आप you're working for mental health, and what made you start working on this area? I would like to know.
Thank you so much for this question, because today, if you ask me, within last 3 days, I am completely in pain because I have lost my beloved pet after a 1 month struggle of immunity disorder. So that, but still, I think healing begins when we choose to look at those stories not as heavy baggages, but as perspectives जो shape करें who we are and not who we can become. Traumas, bad stories, or some tragic incidents in our lives, they can make us or they can break us. It is completely our choice. And as a Exactly. fellow human being, I know that's easier said than done. ये कहना मेरे लिए इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के बहुत आसान है, बट कुछ लोगों के लिए ये करना बड़ा मुश्किल है. सो वी आर नॉट गोइंग टू जज एनीवन व्हाई दे कांट डू दैट, because we all carry stories that weigh us down. But when we pause and reframe them, not as life sentences, but as life lessons, we begin to experience freedom, जिसकी आप बात कर रहे हो. I am really free internally. I have no pressure from outside to validate, to be accepted. Even I am not in that race of being liked and कितने followers हैं, कितने लोग मेरा program join करते हैं. No, I am just here to spread joy, to spread psychoeducation, to make people aware of mental health, and to make people empowered to join this fraternity. That's what I hope we can explore together today. So, जब भी मेरा कोई नया ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होता है, मैं हमेशा एक पर्पस की बात करती हूँ. व्हेन आई आस्क माय पार्टिसिपेंट्स, आपने ये प्रोग्राम क्यों ज्वाइन किया? चाहे वो सीबीटी है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, स्कूल काउंसलर्स का प्रोग्राम है, या फिर हम एडोलेसेंट्स और टीन्स को कराते हैं माय लाइफ माय चॉइसेस. आई ऑलवेज आस्क, what is the purpose to take this course or training? And I always give everybody 4 P's for finding their own life purpose. It may be pain, as we were discussing earlier. If we have received pain, तो हम लोगों का एक पेन ही पर्पस बन जाता है कुछ लोगों का. कुछ people needs. So when it is a planet like need, है ना, planet की प्रॉब्लम हो, तब कुछ लोग खड़े होते हैं कि अब बड़ी जरूरत है. जैसे ग्लोबल वार्मिंग थी, या फिर अभी हमारे फ्लड अफेक्टेड एरियाज में लोग आए, है ना. कई लोगों ने एकदम से अपना प्रोफाइल छोड़ के दे वेंट इनटू social causes. Some they join with some purpose because they have potential to deliver something during that phase. They have potential to deliver something. And some, if they are provided with some platform, they can just hit with their purpose. Otherwise, they were not intended to do that, but some platform has been provided, so it was God gift to them. So मेरे साथ मुझे लगता है ये चारों ही पीस थे. अपने आसपास के लोगों की पेन और मेंटल हेल्थ में यंगस्टर्स को सर्व कर रही थी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के दौरान. सो आई एम सर्विंग यंगस्टर्स सिंस 91. दिस इज आवर 34th ईयर गोइंग टू कंप्लीट. सो इन 34 सालों में हमने 4 जनरेशन सर्व की हैं, एंड आई हैव सीन ए ह्यूज गैप, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, इवॉल्वमेंट ऑफ यंगस्टर्स एज वेल एज पेरेंट्स एंड सोसाइटी एट लार्ज. सो जैसे जैसे नीड आती गई यंगस्टर्स की, वैसे वैसे मैं उसमें इवॉल्व होके उस सर्विस एरिया में जुड़ती गई. प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मेरे पास था यंगस्टर्स के साथ कनेक्ट होने का, एंड देन पोटेंशियल थी मेरे में एज ए गुड लिसनर, एज एन एम्पैथेटिक पर्सन. आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट माय बेस्ट to the welfare of society, especially youngsters. And after being a parent, because there was no manual given to us कि बच्चे को कैसे बड़ा करना है, कितने सारे challenges आ रहे हैं, so parenting coach होना भी इसी जर्नी का एक हिस्सा रहा है. Amazing. And now through my training programs, I am into creating fraternity throughout globe, ताकि हमारी ये फोर्स बढ़े. जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला. पीपल आर सो मच स्टिग्मेटिक कि लोगों की पेन में घुसेंगे तो खुद को भी पेन मिलेगा. So I am breaking these myths through my training programs. Okay, okay. And what I'm hearing you say is, ma'am, it's very strong that you found your strength, and that decision
of like spreading your strength across the world, across the globe, is making you strong day by day, making you evolve. Like you're looking at your purpose and you're moving. है ना? Something like that. This is happening. So Yeah. amazing to like listen to all these things, and how important it is for all of us to know our strength so that we can come from the place of love and spread it across the globe. एंड जैसे ही आपने मिथ की बात की, हम्म आप कौन से ऐसे मिथ को ब्रेक करना चाहेंगे हमारी सोसाइटी में जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है? हम्म Are there anything which is specifically you want to communicate with the viewers here? Yeah, definitely. There are so many societal barriers till the date when we declare ourselves to be very advanced. हम लोग बहुत उन्नत देश बन गए हैं, प्रोग्रेसिव थॉट्स हो गई हैं, बहुत हम लोग लिबरल थॉट प्रोसेस वाले हम अपने आप को मानते हैं. बट इन माई वर्क एज ए साइकोथेरेपिस्ट एज वेल एज पेरेंटिंग कोच, I see how today's parents and teens struggle, not just because of their personal issues, but also because of societal barriers. Hmm. And these include the pressure of marks in education, Mhm. generational gaps where parents can't understand modern challenges. वो यही बोलते रहते हैं हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था. इवन हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल प्रोफाइल से जुड़े हुए पेरेंट्स भी बच्चों को यही सुनाते हैं, हमने भी पढ़ाई की है, हमने इतने सारे रिसोर्सेज की लैकनेस में इतना कुछ अचीव किया है, आपको हम इतना कुछ दे रहे हैं. एकदम जेंडर एकदम. स्टीरियोटाइप्स अभी तक हैं जो बॉयज को साइलेंट करते हैं और गर्ल्स को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं. हाँ बिल्कुल. एक डबल एज स्वॉर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी जो इस वक्त बच्चों की लाइफ के ऊपर चल रही है. हमने खुद ही बच्चों को जबरदस्ती कोविड में स्क्रीन के सामने बिठाया, एंड नाउ वी आर कंप्लेनिंग दैट दे आर एडिक्टेड टू स्क्रीन्स. Really And the heart touching. huge, of course, it is a huge stigma of asking for help even till date, Mm-hmm. especially in senior adults and adults. Youngsters, they are coming up, opening up, and seeking help through online medium. So many times I feel so bad, Filza, when youngsters communicate with me. They want to approach for their mental health support, but they tell me कि parents को ना पता चले. हम Yeah. कभी फ्रेंड से बोरो करते हैं पैसे, वो कभी वो किसी और से बोरो करते हैं, कभी वो अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज ना करके उन पैसों से वो कोशिश करते हैं थेरेपी लेने की. सो मेनी टाइम्स दे आस्क मी टू सपोर्ट फाइनेंशियली. So unless we as a society at large we start breaking these barriers, our children will keep carrying silent burdens, and I call them silent storms. एकदम. जो अब तक का हमारा यंगर ग्रुप है, लाइक जो लोग एडल्टहुड टच कर रहे हैं आफ्टर एडोलेसेंस, वो अभी भी साइलेंट स्टॉर्म्स लेके बैठे हैं. बट ये जो बच्चे अब टीन एज में पहुंच रहे हैं, फ्रॉम लेट चाइल्डहुड टू टीन एजर्स, they are not going to keep their storms inside. So they are getting vocal, they are getting rebellious, they are speaking up, but उनको बदतमीज, rude and disobedient, बिल्कुल बिल्कुल. disrespectful कह के suppress किया जाता है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. which is silencing them, which is making them even more rebellious, जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ अपने आसपास. हम्म. And even not only parents, educators, coaches, teachers, education system, we all as a society at large, we are failing badly in handling our younger generation. We are running a race, but leaving peace of mind, good family values, good social values, and a good family connection, good bond, everything is at stake. And the other thing which I am feeling so bad about, that is breaking marriages, Divorces, losing yes. trust issues, Mm-hmm. losing trust issues, and ईगो वॉर बहुत है. Hmm. इन एडल्ट्स, हम एडल्ट्स में इतनी ईगो वार है, और उसका सबसे ज्यादा बैड इम्पैक्ट जो है वो यंगस्टर्स पे आ रहा है. सो आई रियली वांट टू appeal to each and everybody listening from this platform, kindly
जिसको हम बोलते हैं ना, जरा थमिए, जरा ठहरिए, देखिए अपने आसपास। ये जो हम्म। हम जितना भी सोसाइटल शो ऑफ में और एक स्टेटस की रेस में चल रहे हैं, कंपटीशन, एक दूसरे से ज्यादा अचीव करना है, बहुत कुछ हम लूज कर रहे हैं उस। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, इतना सब कुछ हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए। सो मैम, लेट मी आस्क यू, एज वी आर हैविंग वेरी शॉर्ट टाइम, you chose the topic healing inner core self. Okay, like I understand what it is, and I really want you to share it with our viewers. What made you choose this topic and how important it is for each and every individual to understand deeply about it. Thank you for allowing me to take over this, and thank you for asking this very important question. Because as a psychologist, I often remind people कि healing जो है ना, वो doesn't mean erasing pain, जो ज्यादा बड़ा मिथ है कि ये भी है, या फिर प्रिटेंडिंग के स्ट्रगल कभी होंगे ही नहीं। ऐसा है ही नहीं। इंस्टेड इट इज अबाउट शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव। Mhm. दैट्स हाउ आई वांटेड टू कनेक्ट टू दिस टॉपिक विद योर ओन मेन स्ट्रीम टॉपिक, जो हम पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं आपके इस सीरीज में। हीलिंग आवर इनर सेल्फ इज ऑफन लेस अबाउट फिक्सिंग व्हाट इज ब्रोकन एंड मोर अबाउट शिफ्टिंग द पर्सपेक्टिव, जिसके थ्रू हम लेंस के थ्रू एक्सपीरियंस को देख रहे हैं। Yes. जैसा मैंने पहले बताया शुरू में कि अगर हम पेन को रिफ्रेम कर लेंगे एज ए टीचर एंड साइलेंस एज ए गाइड, वी ओपन डोर्स टू डीपर सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कंपैशन। और धीरे धीरे यही अवेयरनेस हमारी हीलिंग की तरफ हमें लेके जाती है, Mhm. जो वन टाइम डेस्टिनेशन नहीं है। इट इज ए जर्नी, Yes, it is. लर्निंग टू पॉज, टू लिसन इनवर्ड, एंड टू शिफ्ट फ्रॉम व्हाई मी टूवर्ड्स Hmm. व्हाट कैन दिस टीच मी अबाउट माई सेल्फ। आपको पता है, सचिन तेंदुलकर का एक बार मैंने इंटरव्यू देखा था। सो ही वाज टेलिंग टू द ऑडियंस कि जब हम ग्राउंड पे खेलते हैं ना, सो हम अकेले नहीं खेलते, हम दो लोग खेल रहे होते हैं। वो दो लोग कौन है? आपने सीबीटी में समझा है। दैट इज, वन इज कॉन्शियस वॉइस जो एक बाहर दिख रही है, और एक इनर And वॉइस है। subconscious, yes. सपोज अगर वो जाते ही बोलते हैं कि मैं पिच देख के बोलूं, सोचूं कि आज तो पिच बड़ी बेकार है, आज तो सिक्सर नहीं होगा, तो भले ही मेरा रिकॉर्ड है हर मैच में सिक्सेस बनाने का, आई एम द बेस्ट बैट्समैन, बट माई इनर वॉइस विल कैच दैट थॉट, और फिर मेरी इनर वॉइस भी मेरे साथ खेलेगी विद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एकदम। और अगर मैं सामने वाले बॉलर को देखूं कि उसका तो पहली ही बॉल पे रिकॉर्ड है आउट करने का, अगर मेरा ये पर्सपेक्टिव रहे गेम शुरू करने से पहले, डेफिनेटली आई विल कैच दैट वाइब एंड एनर्जी एंड आई विल एक्सपीरियंस दैट फेलियर। बट अगर मैं ये सोच लूं कि नहीं, अगर वो पहली बॉल पे आउट करने का रिकॉर्ड है, तो मेरा भी हर बॉल पे सिक्सर मारने का रिकॉर्ड है। आज देखते हैं किसका रिकॉर्ड ब्रेक होता है। देन माई एकदम। स्पिरिट विल बी डिफरेंट, माई परस्पेक्टिव टू विजुअलाइज दैट सिचुएशन, इट लीड्स टू कॉन्सिक्वेंस एक्चुअली। Hmm. This is और huge. हमें हमें क्या लगता है? तो हीलिंग जो है ना, वो इनसाइड आउट इसीलिए है बिकॉज इट इज नॉट अबाउट एक्चुअली outer world, outer environment. It is all about inner environment. Mhm. है ना? So Yes, that's ma'am. why I always say, when I think of healing from the inside out, I also remember my so many clients who carried years of resentment towards their parents, spouses, children. बाहर से सब कुछ accomplished है, good job, stable family, a very good high status, but inside they were constantly restless and anxious. Hmm. तो मेरा काम क्या रहता है? इट वॉज नॉट अबाउट फिक्सिंग देयर रिलेशनशिप और जॉब, इट वॉज अबाउट हेल्पिंग देम रिलीज द हैवी इमोशनल नॉट्स विद इन, वही जो धागे उलझे हैं और हमें खोलने हैं। सो बिल्कुल। जैसे ही वो अपने इमोशनल बैगेज से बाहर आते हैं, हीलिंग अंदर से शुरू होती है, और बाहर वही लोग हैं, वही रिश्ते हैं, वही बच्चे हैं
but it will look मैं different. आपको बड़ा रीसेंट एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरी अभी एक कनाडा के कपल की रिलेशनशिप काउंसलिंग चल रही है। सो द गर्ल, she was actually under a huge conflict and botheration because the husband was demanding very unusual, unconventional approaches of physical intimacy. So when I talked to the guy, after a very brief interviewing, I could come up with that conclusion. He was suffering from very young age of self-sabotage regarding his performance in bed. He was insecure about his performance and he always thought he is not good enough as a physical partner. So when he got married, because of that fear and stigma and that performance pressure, he was putting those very unconventional and very irrational, illogical demands to avoid that physical intimacy because of that fear of failure. Hmm. And what that girl was assuming, he is a very cheap person, he is a very different kind of sexual, उसका अर्ज है, ऐसा है, उसको शायद ओसीडी है या क्या है. Hmm. Within two discussions, I could figure it out. And when I worked on his inner trauma and I just helped him to come out of that fear, and the girl accepted it, it's okay. There is no pressure from my side. Everything is such so beautiful between them. It's so good. Otherwise, they were on the edge of breaking up the marriage. It's so good. Like जब आप बात करते हैं तो तभी सॉल्यूशंस आते हैं, right? This is a perfect example of that. Like there is nothing which cannot be solved on earth. We just need to communicate, bring it up, take experts' help, and there the solution lies where your intention starts, right? Intention to work on any particular thing. So these things are Exactly. really valuable, ma'am, whatever you are sharing. Like one question I would like to ask you. बहुत बार लोग ये कहते हैं कि इट्स रिएक्टिव, कोई भी Hmm. सिचुएशन के साथ हम रिएक्टिव हो जाते हैं। तो वो इनर टॉक जो आपने अभी सचिन तेंदुलकर जी की बात बताई, वो इनर टॉक नहीं हो पाता है इन दैट रिएक्टिव मोमेंट, right? Then how should we deal with that? And give some tips and strategies to our viewers from your side. ओके, सो आप मुझे बताइए, कपड़े सुखाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एक डोरी चाहिए होती है और एक क्लिप चाहिए होता है ताकि कपड़े गिरे नहीं। ओके, सो एंड अब आपने सनलाइट। एक्चुअली सिर्फ सनलाइट चाहिए होती है। कपड़े तो हम सनलाइट भी ना हो, हम बेड पे बिखेर के पंखा चला के भी सुखा सकते हैं। कपड़े तो हाँ हम कहीं भी सुखा सकते हैं। पर बिल्कुल। आपने सीधे डोरी या रस्सी क्यों बोली? क्योंकि शायद मैंने साइन दिया। ओके। यस, हो सकता है। ओके, गाय दूध, देती है। हाँ, सॉरी, आपको सिखाया पढ़ाया ये गया है कि कपड़े रस्सी पे सुखाए जाते हैं, गाय दूध देती है। गाय खड़ी रहेगी जब तक कोई दूध निकालने नहीं जाएगा, तब तक गाय दूध हाँ नहीं। गाय का दूध निकालना पड़ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो अब लोग सिखाया कहते गया हैं वही हम कैरी कर रहे हैं। दिस सच अ एग्जैक्ट। गुड एग्जांपल, आई एम रियली लविंग इट। तो आपने सुना होगा, डर के आगे, ओह, जीत है, वी ऑल नो दैट। सॉरी, डर के आगे कोशिश है। जब तक आप उठ के कोशिश वाओ। नहीं करोगे, एफर्ट नहीं करोगे, जीत अपने आप नहीं आती है। डर के हम्म। मारे बैठे रहते हैं हम, उस डर को सिर पे लेकर बैठे रहते हैं, एज ए पर्सपेक्टिव, एज ए सोशल स्टिग्मा, एज ए वेल कंडीशनड माइंड एंड आर इनर कोर बिलीफ सिस्टम। हम्म। इज सो गुड। मैंने कितना रटा हुआ है, आई एम जस्ट अंडरस्टैंडिंग। सो गुड, लाइक थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। थैंक यू सो थैंक यू। मच। यू नो मैनी पीपल थिंक हीलिंग जो है वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, थेरेपी में जाना पड़ता है।
लाइक आपका एक स्विच ऑन और ऑफ करने की बात है, जस्ट ए फ्लिप द स्विच। ओके। और दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हीलिंग जो है वो कभी भी लॉन्ग थेरेपी, ड्रामेटिक लाइफ चेंजेस इसके थ्रू नहीं आती है। ये हमारी रोज की स्मॉल डेली चॉइसेस से आती है, कि जैसे जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, हमारी कंडीशनिंग चेंज नहीं हो रही, मेंटल कंडीशनिंग चेंज नहीं हो रही। हमने फिजिकल कंडीशनिंग, अपीयरेंस, वेस्टर्न आउटलुक ले लिए, हमने डिवाइसेस ले ली, हम लोग स्क्रीन पे आ गए, अब हम जूम के थ्रू और लाइव के थ्रू ग्लोबल कनेक्ट हो पा रहे हैं, लेकिन ये जो इनर स्पेस है ये अभी तक चेंज नहीं हुआ। वहीं पर है। एकदम। आई एग्री टू दिस। आई एग्री टू दिस। यू नो, आप रोज सुबह उठ के मॉर्निंग चेक इन करें, बिफोर टचिंग योर फोन आस्क योर सेल्फ हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ। एक छोटा सा बदलाव, कि सुबह उठते ही जो हम अभी सीधा पहले स्क्रीन उठाते हैं, और फिर जो भी यहाँ होता है, जो हमारा टू डू लिस्ट है, जो भी हमारा आज का डेली टास्क है, जो पर्पस है, वो छोड़ा और हम किसी और की दुनिया में खो जाते हैं। ये इतना नेचुरल और ऑटोमेटिक ट्रांजिशन है, पर इनर ट्रांजिशन नेचुरल और ऑटोमेटिक नहीं हुआ, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। सो आप सुबह एक बार पूछते हैं हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ, नेमिंग दैट इमोशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग। बिग टिप्स। और स्ट्रेसफुल मोमेंट क्या है? कुछ नहीं, मैं बड़ी एक सिंपल सी टेक्निक बच्चों को बताती हूँ, कि आप एज्यूम करें आपके हाथ में दो पेन हैं या दो स्पून है, आप किचन में खड़ी हैं, आपको स्ट्रेस है, आप एक स्पून उठा लो, एक सर्विस स्पून उठा लो, एक नाइफ उठा लो, इसको समझो ये रोज है, इसको समझो ये कैंडल है, स्मेल द रोज एंड ब्लो द कैंडल। जस्ट रिलीज। निकल जाएगा। द सो रोज, गुड। बी इन द प्रेजेंट एंड रिलीज वट एवर इज हर्टिंग हियर। सो एकदम। कोई भी स्ट्रेसफुल मोमेंट है, एक छोटा बच्चा क्लासरूम में स्ट्रेस है, एग्जाम एंजाइटी हो रही है, एक पेन और एक पेंसिल को लेके वो इस एक्सरसाइज को कर सकता है, कि आई एम स्मेलिंग द फ्लावर एंड ब्लोइंग द कैंडल, स्मेलिंग द फ्लावर एंड ब्लोइंग द कैंडल। हाँ, वेरी वाह। सिंपल, कोई ह्यूज मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। एकदम एकदम। थैंक यू फॉर रोज शेयरिंग दिस अपने मैम। आप के साथ कंपैशनेट टॉक करिए, एक कंपैशनेट नोट टू योर सेल्फ, हम्म। वन काइंड सेंटेंस डेली, द वे हम्म। we try to say to our dear child, dear husband, or any aging parent. हम्म। एकदम एकदम। सो ब्यूटीफुल। इतने स्नैपशॉट हम लेते हैं रोज, खाना सजेगा एकदम से पहले क्लिक करेंगे, किसी एक अच्छी जगह पे गए क्लिक करेंगे, किसी की लड़ाई हो रही है उसको क्लिक करेंगे। अरे एक ग्रेटिट्यूड स्नैपशॉट भी ले लेना चाहिए रोज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए मैं क्या ट्रेनिंग देती हूँ अपने बच्चों को और ट्रेनीज को, कि रोज, हर रोज रात को सोने से पहले आप एक गुलाब के फूल को एज्यूम करिए, विजुअलाइज करिए, कि क्या गुलाब का फूल ही होता है। हम्म। जब हम उसको प्लक करते हैं या जब वो बहुत सुंदर सी एक टहनी पे लगा है, तो और क्या क्या होता है उसके साथ? आटे होते हैं, पत्ते होते हैं, बहुत कुछ होता है। कांटे होते हैं, पत्ते पत्ते होते हैं, होते हैं, स्टेम, यस। या। ग्रीन लीव्स। सो हमें हर रोज बच्चों को भी सिखाना है, खुद भी देखना है, कि आज मेरे दिन में रोज मोमेंट क्या था। रोज मतलब हैप्पी, ब्लेस्ड, सक्सेसफुल, मोमेंट, यस। प्रोडक्टिव। व्हाट वाज थॉर्न मोमेंट? any painful moment, any negative experience, anything I could not achieve today, या। could not fulfill my wish. And another is bud, हम्म। bud moment. What was the potential in today's, जो मैं कल पूरा कर सकता हूँ? What is the scope? So one is success, another is challenge, third is potential. हम्म। सो गुड। इससे इतना बैलेंस रहता है, अदरवाइज हम सिर्फ वो जो पानी कम हो गया उसको देख रहे, इतना पानी पी लिया, या मेरी बॉटल जो है वो आधी कम हो गई। खाली हो गई। खाली हो गई, यस। व्हाट वी डोंट हैव। जो मैं अक्सर एक्सपीरियंस कर रही अपने लाइफ में। व्हाट वी डोंट हैव, वी आर फोकसिंग ऑन दैट। सो गुड।
बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अगर ये प्रैक्टिस हम रोज करेंगे तो ये इनर प्रैक्टिसेस हैं। नेक्स्ट 30 डेज के लिए अगर आप ये छोटे छोटे काम कर लो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम, जैसे आप सेल्फ हीलिंग की बात कर रहे थे, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इट्स जस्ट लाइक सीड्स और रूट्स। हम्म। जब आप रूट्स आपकी हेल्दी होंगी ना, तभी आप एक हेल्दी प्लांट ग्रो कर पाओगे, है ना। बिल्कुल सो बिल्कुल। कभी भी आपको नर्चरिंग द इनर सेल्फ, इट इज कंप्लीटली लाइक टेंडिंग द रूट्स ऑफ ए ट्री। रूट्स हम्म, नरिश कर लो, ब्रांचेस नेचुरली ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर। एकदम एकदम। जब इमोशनली आप सेंटर्ड फील करेंगे ना इनसाइड, वी आर लेस रिएक्टिव एंड मोर रिस्पॉन्सिव। एकदम। That's a complete answer for my question. Like, reactive moment may you need to heal your root. You need to work on your root so that you can come out strong outside as a strong plant. Thank you. Because we listen better, we argue less, and we Hmm. connect more authentically when Yes. we are centered inside. Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you so much for sharing too many things with us. This is really, really priceless. और मैं चाहूंगी सारे व्यूअर्स को कि आप जुड़िए स्वीन मैम से और माइंड मेंटोर्स से, और उनका हाथ थामिए और इस काम को और भी बढ़ाइए। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं मैम। और आप लोग जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, प्लीज शेयर इट विथ anyone and everyone around you. This is so valuable. और आपको जो भी डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है वो सारे रिसोर्सेस स्वीन मैम की तरफ से आपको गिफ्ट हैं। Go and avail everything. I will put everything in the description box, and go and meet Sweet Ma'am personally. She's an amazing person in my life, and I'm really grateful for you, ma'am. Really grateful. You're a gift for this world. And in this journey of healing others, we are blessing you and we want you to be even more stronger. Thank you so much. Thank you so much. I mean, thank you so much. Thank you. My pleasure, my privilege. I'm so blessed to have you and all the people around me. Thank you so much for being there. And Thank together we can make it sense. Yes. Yes, absolutely. Just so join the hand and make this journey even bigger and easy for everyone to reach out. Yeah. Yes, ma'am. A big heart to you from all of us. Yeah. Thank you. With Thank you. with that, we are ending this prospective series for this week. We'll come again next week, 9 p.m. Indian Standard Time.